ये दो डिफरेंट एग्जाम्स क्यों हैं इंडिया में आर्किटेक्चर के लिए? मतलब अगर इंडिया का सिनेरियो देखते हैं तो देयर आर मोर देन 650 आर्किटेक्चर कॉलेजेस इन इंडिया। तो दो बॉडी हमारे पास में क्यों बनी? JEPR सारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। अच्छा, ठीक है। जिसको कंडक्ट करते हैं NTA, NTA स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये JEPR कंडक्ट करती है। ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का डायरेक्ट टेस्टिंग है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। ओके। सो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए नाटा इज मोर वैलिड, whereas for government colleges and government funded colleges JEPR is more suitable. Yes, you could say. In fact they only recognize the JEPR government colleges only yes. consider JEPR. Yes. Okay. At the time of admission only the merit marks makes the merit list. Acha. Criteria merit is marks as in the score in JEPR give you the merit rank. Okay. Whereas higher secondary marks there is a cutoff. Acha. To pass out 50% of higher secondary marks. However, to be a competent candidate for all the NITs or GFTIs, okay, you should be having 75% as the cutoff. Okay. I would say for NATA, they more give you fictitious situation. like suppose you are a bird sitting on your nest. You got 2 eggs in the and nest. you need to draw that scene. Not only that, there is a boy climbing up and trying to fetch that egg. So, and that you have to do it from the bird's perspective. Yes. Okay. So where is memory in it? You are not a bird. You need to visualize. Visualize it. It is all fictitious situation. Hello all, welcome back to our official YouTube channel of Creative Edge by Top Rankers. Today, this side Muskan Dhanotia and we have Rajendra Bhatia sir with us, a 70-year-old design educator who has truly baptized himself in the journey of teaching design and architecture aspirants. With 3 decades of experience, today, sir will share his deep insights with us that will definitely going to help us understanding the major difference between JEPR and NATA, the top 2 architecture exams in India. So, I welcome you sir and आज जैसा कि मैंने बताया आज हम बात करेंगे JEPR वर्सेस नाटा। तो लेट्स बिगिन एंड सबसे पहले मेरा सबसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा जो एक 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का रहता है या उसके पेरेंट्स का रहता है कि व्हाट इज नाटा एंड व्हाट इज JEPR? नाटा और JEPR ये दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आर्किटेक्चर जिसको करना है, आर्किटेक्चर ग्रेजुएशन करना है उसमें एडमिशन के लिए। एंड नाटा स्टैंड्स फॉर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ओके। एंड JEPR is an extension of the so famous JEE examination, joint entrance examination, which generally you all know as examination for engineering. Okay. However, they have got a paper called as BARC or paper 2. So this is for architecture. Okay. Understood sir. Thank you. And ये दो डिफरेंट एग्जाम्स क्यों हैं इंडिया में आर्किटेक्चर के लिए? मतलब दोनों आर्किटेक्चर के लिए, बट क्या मेजर डिफरेंस है एग्जाम में या दो अलग अलग एग्जाम्स क्यों हैं इंडिया में? दो अलग अलग एग्जाम क्यों हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मुस्कान, अपन अगर इंडिया का सिनेरियो देखते हैं तो देयर आर मोर देन 650 आर्किटेक्चर कॉलेजेस इन इंडिया। ओह वाओ, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। यस, एंड आउट ऑफ व्हिच many are government, some are government funded technical institute, and others are private universities and colleges. Okay. And these are all recognized by Council of Architecture. Okay. तो दो बॉडी हमारे पास में क्यों बनी?
जेई बी आर्क सारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, अच्छा, ठीक है। जिसको कंडक्ट करते हैं एनटीए, एनटीए स्टैंड्स फॉर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जेईबीआर जेई बी आर्क कंडक्ट कंडक्ट करती है। ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का डायरेक्ट टेस्टिंग है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ओके। सो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए नाटा इज मोर वैलिड, ओके। whereas for government colleges and government funded colleges JEBR is more suitable, yes, you could say. in fact they only recognize the JBR Government colleges only yes. consider JEBR. yes, ओके, गॉट इट सर। अभी आपने मुझे जो इनकी एजेंसीज है या काउंसिल बॉडी है उनके बारे में बताया, एनटीए एंड आर्किटेक्चर काउंसिल के बारे में। अब स्ट्रक्चर वाइज कोई डिफरेंस है दोनों में? स्ट्रक्चर वाइज से मतलब आपका क्या? स्ट्रक्चर वाइज एज इन की कोई हायरार्की चल रही हो या कोई काउंसिल बॉडी जो बीच में इन्वॉल्व हो? देखिए, एडमिशन प्रोसेस दोनों के अलग अलग हैं। ओके। दोनों एग्जाम कोई भी कैंडिडेट जिसने 10+2 PCM से करा हुआ है ओके, वो दे सकता है। अच्छा। और देने के टाइम पे आइदर द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड आउट 12th Okay. और मस्ट हैव बीन अपीयरिंग फॉर Appearing द the 12th 12th। exam. एक तो ये हो गए, Be it from any board. एनी बोर्ड, यस, वेदर स्टेट बोर्ड और Or CBSE CBSE or और any ICSE, Okay. एनी बोर्ड Okay. और इक्विवेलेंट, Okay. राइट? देयर आर ओपन यूनिवर्सिटी, NIUS and यस all. यस, तो उसके भी कैंडिडेट। इसके अच्छा। अलावा एलिजिबिलिटी के लिए अगर अपन बात करें तो 10+3 के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर वो मैथमेटिक्स एक मेजर सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक एंट्री इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ BArc। ओके, ठीक है। तो Okay. डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी एलिजिबल Yes, है yes. अगर उनका मेजर मैथ्स है? जी हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। अब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे शॉर्ट में बताया फॉर बोथ द एग्ज़ाम। अब अगर मैं स्पेसिफिकली नाटा की बात करूं तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? नाटा के लिए, एज आई टोल्ड यू, you have to have PCM as your subject. Either you should be appearing in 12th or you should have passed out. ओके, There is no age limit for admission in architecture college if you go through NATA. ओके। सो नाटा में कैंडिडेट ऑफ एनी एज कैन अप्लाई? Apply. ओके, Your higher secondary score should be at least 50%. एटलीस्ट 50% फॉर नाटा। Yes. गॉट इट सर। एंड कोई भी एज में हम अप्लाई कर सकते हैं? Yes. ऐसा नहीं है कि हमारा अगर कॉलेज हो गया तो उसके बाद हाँ. हम नहीं कर सकते हैं? जबकि JEBArc में ओनली प्रीवियस 2 years प्लस दिस ईयर, हाँ. ये 3 साल के अंदर अंदर ही आप JEBArc को eligible हो एलिजिबिलिटी apply मिलती करने है। के लिए। अन्यथा एज लिमिट इज नॉट देयर, बट द पासिंग ईयर ऑफ 12th हाँ, should be within 3 years of giving the JEBArc examination. ओके, गॉट इट सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था, JEBR की एलिजिबिलिटी, तो अब इट इज Clear है? अंडरस्टूड। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम पैटर्न पे हम थोड़ी बात करते हैं कि नाटा और JEBR के एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस है, एंड नोटेबल डिफरेंस अगर हम बता पाएं तो? दोनों बहुत अलग एग्जाम है मेरे हिसाब से। ओके। अपन पहले बात करते हैं JEBArc की। ये 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, ओवरऑल टोटल 400 मार्क्स का 400 मार्क्स का पेपर? है, अच्छा, जिसमें से ओनली 100 मार्क्स आर फॉर ड्राइंग एंड स्केचिंग। ओके, That means weightage is 25% for drawing and sketching. Rest Okay. 300 marks are for mathematics and aptitude. उसमें से भी 100 marks are dedicated to the higher maths ओके। सो 100 फॉर ड्राइंग एंड क्रिएटिव पार्ट and 100 for mathematics 100 फॉर मैथमेटिक्स and 200 for aptitude. ओके, गॉट इट सर। तो मतलब हम एग्जाम पेपर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हाँ. कि स्टूडेंट्स विल बी जज बेसिस ऑन देयर क्रिएटिविटी फॉर 100 मार्क्स Right. एंड 100 फॉर हायर मैथमेटिक्स। मतलब उनका मैथ्स भी एक पॉइंट पे स्ट्रांग होना होना ही चाहिए, चाहिए। एंड 200 फॉर एप्टीट्यूड एंड GK एंड ऑल अदर
इसको subjects. फर्दर डीपर एनालाइज करते हैं अपन. Okay. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम्म. only the merit marks makes the merit list. अच्छा. Criteria Merit is- marks as in. The score in JEE ARC हाँ. give you the merit rank, Okay. whereas higher secondary marks there is a cutoff. अच्छा. To pass out 50% of higher secondary marks. However, to be a competent candidate for all the NITs or GFTIs, Okay. you should be having 75% as the cutoff. ओके. सर एक डाउट आया है मुझे बीच में. GFTI का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. अच्छा. इसमें भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस है. ओके. सो दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस. Yeah, they are government funded colleges. ओके. Like the most famous are SPA Delhi, SPA Bhopal, Bhopal. and SPA Vijayawada. These are government funded technical Colleges. institutes. ओके. तो हमने JEE का डिस्कस किया. ऐसे ही नाटा का भी हम अगर ब्रीफली डिस्कस. नाटा में बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है. Here the criteria for admission in higher secondary is 50%, and the NATA score where the passing mark out of 200 it is only 70 numbers. ओके. So you can pass out with only 35% marks. NATA 35%, that is 70 marks 70 in total. marks. Yes. Okay. However, the weightage for the subject 80 marks are allocated so far. I mean till last year Okay. for drawing and sketching. अच्छा. That means 40% weightage is for drawing. Is for drawing and creative part. Yeah, and 120 for aptitude and Aptitude. and AAT. Okay. AAT Is stands for. architecture awareness test. Okay, so it is wholly based on architecture. Architecture awareness, Okay, like got it. the types of bridges, types of buildings, History of architecture. Yes. And Now, everything. I forgot telling you, even in JEE ARC, out of the 200 allocated for the aptitude, AAT part is about 35 numbers. Okay, AAT carries 35 marks. At least. So students And can straight score away good get it. Straight away if they get it, yes. take good hands-on AAT. Yeah, if they get a good training, Okay. like what we give in Yeah, we do creative. conduct special classes for AAT as well. I have Exactly, noticed this. exactly. ग्रेट. ओके. एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया. अब मुझे जहाँ तक क्लैरिटी अभी है ये कि शायद नाटा ज़्यादा फोकस करता है क्रिएटिविटी पे और ड्राइंग पार्ट पे. इसके अलावा एम आई जब करेक्ट? यस Okay. इसके अलावा जब अपन एडमिशन की बात करते हैं तो इट इज अनलाइक JEE ARC. JEE ARC में क्या है, आपने 75% स्कोर कर दिया, हाँ. देन योर मार्क्स आर segregated. Maybe you got 80%, you got 90%. That has no meaning on the merit list. Okay. Whereas with the NATA. NATA, the criteria for admission is 50% weightage to the higher secondary marks ओके. and 50% weightage for the NATA score. अच्छा. So that becomes a huge difference between the two Exams. types of entrance test. ओके, गॉट इट सर. Right. एंड अगर मैं इसका वाइस वर्सा करूं कि कौन सी एग्जाम मैथ्स और एप्टीट्यूड पे ज़्यादा बेस्ड रहता है, कि स्टूडेंट्स जिनका मैथ ज़्यादा स्ट्रांग है या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्हें मैथ से डर लगता है, तो उन्हें कौन सी एग्जाम ऑप्ट करना चाहिए? NATA, quite NATA. naturally, because Naturally. higher maths के questions ही नहीं है उसके अंदर. हाँ, All is basic 120. maths. 120 marks are for the aptitude and AAT. ओके सर, गॉट इट. अब थोड़ा सा बात हम सब्जेक्ट्स और डिफ़िकल्टी लेवल पे करते हैं. तो नाटा में अगर हम सब्जेक्ट का एक ब्रीफ डिवीजन देना चाहें तो कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ते हैं ड्यूरिंग हिज और हर प्रिपरेशन फॉर नाटा एग्जाम? नाटा का पूछ रहे हैं आप? हाँ, नाटा. नाटा में एज आई टोल्ड यू एप्टीट्यूड जनरली कंप्राइजेस ऑफ योर मैथ्स अप टू 10th. अच्छा, 10th तक उन्होंने जो जो स्कूल में maths- 10th तक वो मैथ्स सबके लिए पढ़ा है. कंपलसरी है. हाँ. तो वो मैथमेटिक्स लेवल आ जाएगा. ओके. And then a little part of GK हाँ. and quite a little part of your AAT. AAT.
and of course your drawing ability. Okay. That makes your NATA score quite good. डिसेंट स्कोर आप कर Yes, सकते हो अगर yes. आप ये सारे सब्जेक्ट्स में. Generally, what I find, a very high scoring candidate gets around 170 out of 200 marks. Okay. Now, if you talk about the percentage of 170 is 85%. ओके सो कोई स्टूडेंट ने अगर 170 अबव स्कोर किया है तो दैट मीन्स वो स्कोर उसके लिए अच्छा है मतलब No, no, 130 above is a good score. गुड स्कोर बट I am talking about the highest marks. हाईएस्ट टॉप Topper. टॉपर का. Yes. ओके. And आप अल्टीमेट इसका रिजल्ट देखो, that is going to be counted as percentage now. So as I told you, 170 would count as 85%. And Okay. suppose the same candidate has got 85% In his high 12th. secondary, in 12th, हाँ. then the total, that is, again becomes 170%. हाँ. 50 percentage 50% दोनों का and count divided होगा. by 2. So the percentile comes out to be 85%. 85% again. Got it. You can have all the titration done with the marks and find out what could be your merit score, Merit score. and then the rank, and then it depends on which school or which architecture college are you applying with. Okay. So their merit list, their cut off the last year, and अच्छा. all that. That is about the NATA. अबाउट द नाटा. एंड अगर नाटा की मैं जो क्रिएटिव वाला पार्ट होता है ड्राइंग वाला उसकी बात करूँ तो ऐसे 2-3 टॉपिक्स आप मुझे बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए. हाँ, नाटा में जो 2-3 टॉपिक आएंगे, मेनली 2 dimension design 2D डिजाइन. and one memory question. That has to be there. एज इन मतलब अगर हम उसको Memory थोड़ा सा- drawing, that means any scene creation. अच्छा सीन. What you remember. हाँ. I would say for Nata, they more give you fictitious situation. like suppose you are a bird sitting on your nest. You got 2 eggs in the and nest. you need to draw that scene. Not as only a, that, there is a boy climbing up and trying to fetch that egg. So, and that you have to do it from the bird's bird's point of perspective. yes. Okay. So where is memory in it? You are not a bird. You need to visualize. Visualize it. It is all fictitious situation. Okay. You are a worm left out on the kitchen platform, हाँ. and your mother is a human being, and she is cooking food on the gas stove or whatever. So you have to draw from the worm's point of view as to how you would see the whole situation. Okay. So mostly these kind of preparation we have to do with the candidates so that they have got a lot of good visualization, imagination. And also they need to be good at drawing what they are thinking. Yes. in the available time. कई बार And- स्टूडेंट्स के साथ ऐसा and होता very है. very much हाँ. perspective effective. हाँ. That has to be there. दिखना चाहिए कि बर्ड के Yes. पीओवी से बनाया है. Yes. और कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं कि विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आइडिएशन बहुत अच्छा कर लेते हैं बट टाइम पे बना नहीं पाते हैं. That is where they are supposed to take a good training Yes. from a good institute. I And always recommend. practice they need to practice. Yes. मतलब इसमें तो मैं ऐसे जज कर पा रही हूँ कि मंथ्स की प्रैक्टिस ही लगती होंगी तभी उस लेवल पे एक स्टूडेंट पहुंच पाता है कि वो जो विजुअलाइज कर रहा है. एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपने बताया किसी के भी पीओवी से आ जाएंगे. Yeah. And इसी को मेजर वेटेज रहता है. हाँ. तो एक ये हो गया, 2 dimension डिजाइन हो गया, 3D इमेजिनेशन भी आता है. Like there are forms which are to be created, Okay. and that too without looking at the forms, Okay, without so looking at the उनको आपको object. 3D फॉर्म में 3D क्रिएट form करना में है. depict करना है. So you should have a good knowledge of the Each proportions, faces of the shape, how Yeah. at particular face will. shapes and form. Okay. Form is important. हाँ. If it is a sphere, you have to show it as a sphere. Sphere. If it is a cuboid, you have to Cuboid. show it as a cuboid.
So how to show you that need to cuboid? imagine it Yes. also as a cuboid, then only Yeah. you can draw. Yeah. So visualization plays a very important role Yes. while preparing for And NATA. equally good is the Sketching sketching skills. ability. Now, I have got a suggestion here to give. Okay. Students who do not have a very good sketching ability, Mm-hmm. they should start in class 11th, at least. They should start their preparation in their 11th. 11th grade only. Yes. Okay. People who have got good sketching skill, but less of a visualization, they also should start in 11th. In 11th Because it to goes, make sure their foundation skills Yes. are up to the mark. not only that, they learn how to visualize. Okay. They learn how to sketch out different perspective, 1 point, 2 point, 3 point, 5 point perspective. एंड एज मतलब 12th में स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उनके बोर्ड्स का भी बहुत प्रेशर रहता है स्कूल के साइड से या मेंटली प्रेशर रहता है, तो इट्स बेटर कि वो 11th से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 12th तक एटलीस्ट उनके सारे फाउंडेशन टॉपिक्स या जो टॉपिक टाइम टेकिंग है हाँ, वो उस पर वर्क कर पाएंगे अच्छे एग्जैक्टली से. और जैसा आप बीच बीच में बोल रहे हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. सो दोनों केस में जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. हाउएवर एक्सीलेंट एट विजुअलाइजेशन, एक्सीलेंट एट स्केचिंग एबिलिटी, स्टिल want to Lacking score behind. want to score good marks in 12th, they also need to start in 11th so that they have covered major portion in 11th Okay. and need to brush up only in the 12th. So all pros and cons. 11th is better time to start with. However, if somebody didn't have the knowledge and still want to join, I have seen some of the candidates even getting success while joining our crash courses. Like fast track batches Fast and track all, batches crash and all courses. But ideally, On a safer note, 1 it to is 2 being years is good. recommended to at least have a preparation of 1.5 to 2 years. yes, yes. ओके सर. एंड अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे बात करते हैं Okay. कि JEBR ज़्यादा डिफिकल्ट है या नाटा ज़्यादा डिफिकल्ट है, या स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करेगा ये. या देखिए, तीनों पोर्शन है उसके अंदर, हाँ. बल्कि 4 बोलता हूँ मैं. ओके. JEBR के अंदर में हायर मैथ्स as good as that is there in JEE mains. अच्छा, दोनों का लेवल सेम होता है. Equivalent. ओके. For मतलब JEBR. द स्टूडेंट्स नीड्स टू बी वेरी गुड एट Very good मैथमेटिक्स. at mathematics. ओके. Second part is aptitude, हाँ. right? Third part is AAT in that, architecture Okay. awareness. हाँ. And the fourth part is sketching ability. Now it is 25% is not that small number. हाँ, Now 25% marks can 25% make or mar the whole. score yes. of the candidate. Yes. So people who are good at maths and are comfortable with maths, they Yes. can think of Who are not JEBR. scared of maths, we could say. Yes, yes. Yeah. Yes. They should opt JEBR. Yes, yes. And well, there are students who have got a lot of phobia with the higher maths. Yes, exactly. So they can more depend on Nata. NATA, and not that NATA candidates do not go to a good college. There are many of private colleges which are at par on the international level for their education. Programs And yes, yes. their And curriculum syllabus, especially yes. for architecture. ओके सर, ये आप पहले मेंशन कर चुके हैं, बट मुझे एक बार और क्लैरिटी चाहिए कि मैथमेटिक्स दोनों एग्जाम के लिए कंपलसरी है ना? हाँ, ओके. मतलब दोनों के लिए आपको 12th में PCM सब्जेक्ट या PCM मैथ्स चाहिए, एज चाहिए. मेजर Higher maths सब्जेक्ट्स चाहिए. yes. ओके. अब अभी हम कॉलेज के बारे में ही बात कर रहे थे कि आपने बताया प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या अच्छा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस जो नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम ब्रीफली डिस्कस कर पाएँ तो. मैं 2 तो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस का नाम लूंगा यहाँ पर. ओके. जो जो नाटा नाटा का स्कोर स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा. JEBR in JJ School of Architecture. It Mumbai. is in Mumbai, Mumbai. Maharashtra. Okay. Right? They also accept JEBR score. Okay. So one of the two or both of them at a very high level. तो ये ऐसा हो जाएगा. हाँ. दूसरा MSU बड़ौदा. MSU बड़ौदा एंड गुजरात. हाँ.
Okay. Now they are not exactly GFTI. हाँ. They are state government funded colleges. So they are not in अच्छा. the category of GFTIs, Okay. but they are government colleges. Because they are being funded by their particular state. State, yes. Okay, got it. Right? या And- एंड नाटा का अगर हम स्पेसिफिक बताएं तो कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? Even the topmost college of India, CEPT, is taking on. प्राइवेट कॉलेज भी कुछ Yes. से. CEPT Ahmedabad, हाँ, सेप्ट अहमदाबाद. Nirma Ahmedabad, ओके. then Bombay, LS Raheja, Kamala Raheja, many of them. Many of them. अच्छा, are तो there. ये हमने कुछ टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी बात की और जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर MSU बड़ौदा. तो इसका अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करना चाहूँ कि ऐसा होता है क्या कि नाटा का जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल या मार्च एंड में होता है, तो उसके बाद ही ये कॉलेजेस अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या पहले से भी हम अप्लाई करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हम लोग बात करते करते एडमिशन प्रोसेस पे आ गए. हाँ, तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आर्किटेक्चर के लिए. अच्छा. तो मैं उसको ब्रीफ आउट करूंगा. हाँ. अलग अलग. हाँ. JEB आर्क साल में 2 बार होता है एंड बेस्ट ऑफ द 2 का रिजल्ट लगता है दोनों में से तो जिसमें बेस्ट एक तो अभी हो गया 29 जनवरी को हुआ है. 29 जनवरी हाँ. को हो गया. एक आपको अप्रैल में है. अंदर में आएगा. इनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो लगेगा. ओके. इसके लिए एडमिशन प्रोसेस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय जोसा. जोसा. हाँ. कुड यू प्लीज Yes. टेल मी द फुल फॉर्म? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. ओके. जोसा स्टैंड्स फॉर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. गॉट इट सर. सो इसके 6 राउंड्स होते हैं. हाँ. ठीक है. एक बार ये रिजल्ट आ गया प्लस 12th का रिजल्ट आ गया, उसके बाद इसकी वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वहां से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, ठीक है. ठीक है. इसमें जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, GFTIs, हाँ, ये सारे इसके थ्रू खुलते हैं. इसके थ्रू खुलते हैं. तो एक बार आपके पास 12th और इस JEBR के बेस्ट स्कोर होगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी. ओके. ठीक है. हाँ. और इसमें आपने एप्लीकेशन दिया. हाँ. इसके बाद में आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट भी देना रहता है कि आपकी प्रायोरिटी में पहला कॉलेज कौन सा है. हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट की प्रेफरेंस लिस्ट वी कुड से कि मैं सबसे पहले प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन को कर रही हूँ. एग्जैक्टली. ओके. नाटा के अंदर में पहले नाटा रिजल्ट, नाटा के 3 अटेम्प्ट तो ऑफिशियल रहते हैं. हाँ. हर साल दे सकते हैं. हाँ. 3 में से बेस्ट ऑफ द रिजल्ट इज टेकन अच्छा. इनटू अकाउंट. ओके. है ना. बेस्ट ऑफ द 3. हाँ. हावेवर एक और कैच है इसके अंदर. लास्ट ईयर जो हुआ था, हाँ. वो कैसा था, सपोज करो आपने पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया और तीसरा मिस कर गए. फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड स्किप कर मिस दिया. कर गए. हाँ. स्किप करें, मिस कर गए. हाँ. फिर आपको लगा नहीं मैं और भी अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आपके लिए एक 4th अटेम्प्ट और खोला था. लास्ट ईयर खोला था. हाँ. ओके. इन पर इट इज फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर फॉर द थर्ड अटेम्प्ट या एनी वन ऑफ द 3 अटेम्प्ट्स. ओके. आपने 2 दिए, फर्स्ट और थर्ड दे दिया, हाँ. तो आप 4th दे सकते हो. ओके. है ना. या कोई भी फ्रेश कैंडिडेट डायरेक्टली 4th नहीं दे सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो भी दे सकता है. ओके. फ्रेश कैंडिडेट हाँ. या एनीवन हु हैज डन 2 maximum of 2 attempts, but anyone who has given all the 3 attempts ओके. will not take the 4th attempt. ठीक है, गॉट इट. Right? हाँ. So इसमें जो पहला रिजल्ट आता है, अब जैसे मैंने बोला अपन एडमिशन प्रोसेस पे आ गए, तो जो पहला अटेम्प्ट था, हाँ. उसका रिजल्ट से के बाद ही यू कैन अप्लाई विथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हु आर ऑफरिंग ऑल इंडिया सीट्स स्ट्रेट अवे टू द कैंडिडेट्स. ओके. इसमें कोई एजेंसी के थ्रू नहीं जाना है. लाइक Directly JEBR आप में university- जोसा के थ्रू गए थे आप. हाँ. इसमें आप डायरेक्टली डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उनके एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा और उस पे से आप अप्लाई दे कर सकते सकते हैं. हो. ये डीम यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है. हाँ.
गॉट इट. लेकिन ये महाराष्ट्र में ऐसा सब नहीं होता. हाँ. गुजरात में quite number of seats are allocated to the deemed university, Okay. and some seats are reserved for ACPC. ACPC stands ACPC is Admission Council of Professional Courses. Okay. That is their state body. for. Okay? Instead of DTE, Director of Technical Education, Okay. who are responsible for admission in higher studies in a state. हाँ. So in Gujarat, ACPC is the DTE. Authority for it. Yeah, Okay. the name is DTE. Okay. Similarly, in Karnataka, it is COMED-K. COMED-K. है ना? हाँ. तो इनके नोटिफिकेशन के बाद में आपको एडमिशन एडमिशन प्रोसेस चालू होता स्टार्ट है. होती है. बट डीम यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन पहला वाला उनका रिजल्ट भी आ जाता है. हाँ. विद द नाटा रिजल्ट they take certain They number choose of the candidates, candidates. right? Okay. But they finalize the list after the last attempt. अगर Okay. उसके पहले भर रहा होगा हाँ. तो then they don't wait. अच्छा. हाँ. However, anything left out हम्म. is then filled up by their state body. Okay. For example, दूसरे स्टेट में है, you are in राजस्थान, हाँ. you are in मध्य प्रदेश, हाँ. you are in पंजाब. So ये जो मैंने बताया है, हाँ. वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू भी आप जा सकते हैं और बाकी की सीट वो वहाँ से भरेंगे. वहाँ से फिल कर सकते जी. हैं. ओके सर. ऐसा ही JEE-BR में जोसा के 6 राउंड के बाद हाँ. देयर इज अनदर बॉडी. ओह. यस, ओके. that is Central Seat Allocation Board, Okay. through which you can apply for those government colleges. Okay, so there are multiple bodies Yes. Student Yes. can take. Actually 2 साल पहले तक तो किसी को मालूम ही नहीं होता था कि ये इतना बॉडी भी सब एग्जिस्ट कुछ है. करती है. हाँ. और बहुत से कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं वो रह वो जाते रह थे. जाते हैं because of lack of awareness. सेकंड बात, आपका स्टेट जो है, हम्म. सपोज यू आर ए मध्य प्रदेश कैंडिडेट तो and आपको your स्टेट डोमिसाइल भी मिलता है. स्टेट डोमिसाइल प्रेफरेंस हाँ. वो मिलेगा ओके. थ्रू द सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड. हाँ, तो इसमें जो कॉलेजेस लेट्स से मध्य प्रदेश में है वो MP के कैंडिडेट्स के लिए स्टेट कोटा एज इन कुछ रहता हाँ, है. ऐसा कह सकते हैं. हाँ. पर ये बचे हुए सीट्स के लिए होता है जब के लिए राउंड्स रहता. कंप्लीट हो तो जाते यू हैव हैं टू बी लकी इनफ to get to get your through. seat Yes. during this process. Yes. Okay sir, got it. And अभी हमने नाटा के कॉलेजेस का डिस्कशन किया एंड JEE-BR का भी किया, बट ऐसे कुछ कॉलेजेस के नाम आप ले सकते हैं जो JEE-BR का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस. तीनों SPA सिर्फ गवर्नमेंट का ही स्कोर JEE-BR का ही ले रहे हैं. SPA दिल्ली, भोपाल एंड विजयवाड़ा. ओके. है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कोई और All NITs. All NITs. 9-10 NITs. अच्छा, there are more than 8 to 9 NITs in India. Even plus there are 3 IITs also who are Who offering. consider JEE score for architecture? No. That is third process. There are multiple processes. Yes. Actually, IIT Kharagpur, IIT Roorkee, and IIT BHU, Banaras Hindu University. Okay. These 3 colleges offer architecture courses. Architecture program. Yes. So There students are- can pursue BArch from an IIT also. IIT also. Okay, got it. So there you have to go through multiple channel. Firstly, you should be through with JEE mains, हाँ. JEE advanced, and their AAT. अच्छा, If you haven't crossed through the JEE-BR, then you have to face the AAT, which is offered by the IITs. IITs. Suppose in their criteria you are eligible, but you haven't cleared JEE or you mains did or not give JEE-BR, हाँ. but you want an architecture seat in that, then you have to give AAT. ओके सर, गॉट इट. Conducted by मतलब them. ये हमारे लिए एक हैप्पी न्यूज़ होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है कि वो एक IIT से भी BArch कर सकते हैं. बिल्कुल.
और इनके पास में बहुत स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, लाइक नेवल आर्किटेक्चर नेवल आर्किटेक्चर. नेवल आर्किटेक्चर शिप डिजाइनिंग Okay. is at IIT Kharagpur. Okay. So It's मतलब like that. I don't think so कि सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को इस फील्ड के बारे में भी पता होगा कि मैं- नेवल मैं- आर्किटेक्चर भी मैं कुछ. पिछले कई साल से बोलता रह रहा हूँ कि you have to study their brochure, you have to study a Yes. lot, or maybe listen to me. You need to do a lot of research if Yes. you are opting for any field, or you need to have that expert guidance behind Exactly, you. exactly. ओके सर. एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मुझे भी बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है. एक स्टूडेंट नाटा और JEE दोनों में अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. कर सकता है ना? क्राइटेरिया आप दोनों का सिमिलर ही है. क्राइटेरिया आप जितना वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये स्टूडेंट को हायर सेकेंडरी में, क्योंकि वहाँ 75% है यही बिहार में हाँ. फॉर फाइनल एडमिशन फाइनल एडमिशन. इन NITs एंड एवरीथिंग. हाँ. और यहाँ पे 12th का स्कोर इज काउंटेड एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन आई में नाटा के थ्रू. हाँ. तो यहाँ से भी आपको स्कोरिंग अच्छा चाहिए. ओके. दोनों चीजें हैं. तो ये इतनी क्लैरिटी माइंड में रखकर आप जी. दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई और दोनों के थ्रू कॉलेजेस ले सकते हो. पर एक और मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स भी करना चाहता हूँ. हाँ. फर्स्टली architects are a gazetted officer, ओ. right? यस. एंड ऐसा नहीं है कि आपका अगर 75% स्कोर नहीं आ रहा है, पर एलिजिबिलिटी तो जैसे मैंने बताया 50% स्कोर पे भी, हाँ. एंड स्टिल यू वांट टू बी अ गजेटेड ऑफिसर. Then मैंने you आपको can बताया pursue. 650 कॉलेजेस आते हैं. हाँ. यू मे नॉट गो टू द टॉप नॉचर्स, top-notchers. but you may be in some good mediocre colleges. And you can be in the list of officers. Yes, You can have you that. are gazetted officer. Yes. At the end of the day, हाँ. you will find your intellectual intellect हाँ. will work. आप कितने सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनते हो या आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट No matter from which college you have. what pursued. colleges you adopted. Okay, sir. Top colleges of course give very good, हाँ. they ensure that their candidates are best placed. At good place. Yeah, but these colleges also have got a record of placing their candidates at a very high level. Okay. Yeah, in their practice and whatever. ओके. सो इसी के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे कि कौन सी एग्जाम से बेटर चांस है टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए? दोनों एग्जाम को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों एग्जाम को कंपेयर करो तो दोनों एग्जाम के एंट्रेंस कंपेयर कर लो. हाँ. एंड वेर एवर यू कैन स्कोर, हाँ. it is immaterial whether you are doing an architecture from government institute or a private institute, because your degree is going to be given by Council of Architecture only. मतलब So दोनों तरफ से से ये आपको डिग्री एक ही बॉडी गवर्न करता प्रोवाइड करेगी. गवर्न करता है. ओके. They approve, even IIT are approved by Council of Architecture to conduct architecture courses. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, आपका विल कितना स्ट्रांग है, आप कितना इंटरेस्ट के साथ उस कोर्स को परस्यू कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है आपके आने वाले years. फिर भी मुस्कान ऐसा हाँ. बोलूंगा कि try to find out top 50 to 100 colleges, 50 to 100 is a good because number. with due respect to many of the colleges, हाँ. they at time fail to give the quality of the education just because always there is a paucity of good teachers, ओके. right? मतलब So there अच्छा are teachers many colleges who are dependent on visiting faculty. visiting and guest faculties. Yes. Even I had got some feedback from the students कि Yes. permanent faculty का नहीं होना एक बहुत बड़ा drawback है This is students one of the के लिए. biggest. So what I suggest generally, Top 50 or 100 colleges are students should target on that only. exactly, because I got baptized in an architecture college, हाँ. I am more known to this fact. Yes. And I have been very keen, even with the parents. Like I try to give them the best guidance post examination, post the during result the of counseling yes. phase and during Yes. the time when Yes. they are finalizing the Yes. options. So I take to it like everybody should be guided. So far, they are Yes. ready to approach to me.
ओके सर, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसके बाद मतलब जब एक स्टूडेंट नाटा या जेईबी आर्क से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या वो एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसको करियर स्कोप क्या मिलता है या वैल्यू क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि नाटा या जेईबी आर्क उसने चूज़ किया है तो वो अफेक्ट करता है उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कि आगे चल के उसको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर उसने कोई एक एग्ज़ाम चूज़ की है तो। जनरली देखा है मैंने कि आर्किटेक्ट के लिए जॉब बहुत कम है। हाँ, जॉब मतलब आई एग्री। गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, सेटल्ड जॉब वी कुड से हाँ। जो बट at the same time, they got a lot of opportunity in their practice, ओके right? So it doesn't matter whether you went into a government college or a private institute. How you have really got through, and particularly how your internship went through, यस that will decide your course of. how much practical knowledge you have Exactly, gained exactly. during your internships, during your graduation projects, we Exactly. could say that would create a major impact in getting the opportunities. There is one more catch into it. yes You can as well say कि syllabus में क्या difference, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हाँ, या मेरा क्या ये नेक्स्ट एडवांटेज? क्वेश्चन यही आने वाला था कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेट में उन्हें कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या सेम कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज जाने के बाद भी उतने सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो थोड़े से अगर हम डिसएडवांटेजेस पे बात करें दोनों के ही, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी, तो क्या बात कर सकते हैं हम इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। आर्किटेक्चर इज अ डायनामिक कोर्स। हाँ Every day, every week, there are changes in how you practice architecture, how the buildings are being erected, how the bridges are being laid down, and so no on so matter forth. the project है ना? could be a big scale or a small scale project. I will throw a reverse question on you. Which of the two kind of colleges will adopt a new course, government or private? Tell me As- honestly. As far as my understanding, I think so. गवर्नमेंट को वेट करना पड़ेगा थोड़ा अप्रूवल के लिए, या प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, बट प्राइवेट को कोई भी अथॉरिटी का वेट नहीं करना है वो और उससे इंडस्ट्री कनेक्ट ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा अवेयर होता है कि तो अभी industry क्या हो गया, trends उल्टा हो are- गया ना। हाँ प्राइवेट कॉलेज जहाँ फीस ज़्यादा है, हाँ, लेकिन इंडस्ट्री कनेक्ट और इंडस्ट्री कनेक्ट है। करिकुलम उनका अप टू डेट। एग्जैक्टली, अप टू हाँ। डेट करिकुलम है। हाँ और इन टॉप ऑफ इट, लॉट ऑफ दीज कॉलेजेस हैव गॉट MOU साइंड अप विथ फॉरेन architecture colleges okay, they do have tie-ups for their Tie-ups. students, for their syllabus also. for their syllabus also, so, Yes. so they are having syllabus as per foreign curriculum. आज कोई नया universities चीज curriculum. आया, हाँ, कोई एक नया मटेरियल एक्सपेरिमेंट करके थ्रू हो गया, मार्केट में। हाँ हाँ, तो उन्हों को लेने के लिए एक हफ्ते का टाइम है, दे विल शिफ्ट ओवर, ओके राइट? हाँ, With due respect to the government गवर्नमेंट colleges, इंस्टीट्यूशंस। they know that something new has come in their conferences. हाँ They apply for it. हाँ, The approval come in the third year. oh my god, By that time, एक batch that तो one pass new, out. yeah, not only 2 batches have हाँ. passed out, that one new thing that had come has already become stale. वो खत्म से हो जाता है, and by that time there is बियॉन्ड new. बहुत सारी नई चीजें आ Exactly. चुकी होंगी उस मीन तो ये तो ड्रॉबैक हो गया गवर्नमेंट हाँ कॉलेज का। कॉलेज का। But as I see, like other countries, they do take a lot of candidates having passed out from reputed government colleges. Tag matters, I would Tag say. matters. Yes. Yeah, but that tag is also available with lot of private colleges. Very good prestigious Yes, private yes, institutions. yes. So मतलब स्टूडेंट को आई वुड से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इन केस अगर उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो। नहीं, बल्कि there are, I've seen many of parents हाँ asking me, having understood this one criteria, criteria. asking me to
suggest them private Good colleges. private colleges. And once you come to me, I got list of tens of them every state that Sure. I will I will provide to them. definitely for our students benefit क्योंकि JEBR हो चुका है अभी तो we would definitely counsel students for good colleges as well. Yes. ओके सर सो दीज वर माई क्वेश्चन एंड ये जो आज का पॉडकास्ट था हमारा सेशन था इसने मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे एंड आई वॉज प्रिटी नॉट अवेयर ऑफ मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर और नाटा और BR तो मेरे तो डाउट्स क्लियर हुए ही हैं आई होप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के भी क्लियर होंगे सो अ Definitely. बिग थैंक यू टू यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस Thank you so much. थैंक यू सर Bye bye.